اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اطلب تجد، تلاش اور کوشش کرو تاکہ کچھ پا سکو۔ اطلب تجد، تلاش اور کوشش کرو تاکہ کچھ پا سکو۔ بحث ہماری کتاب صوم کے بارے میں چل رہی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ شروط وجوب ہیں کچھ اور کچھ شروط صحت صوم ہیں، تو شروط وجوب کو بیان کر دیا تھا اور شروط صحت کو تھوڑا سا بیان کیا تھا، اسی کا آگے تسلسل ہے۔ والخلو منہما من الحیض والنفاس۔ جی بات عرض کر رہا ہوں کہ بحث ہماری چل رہی ہے شروط صحت صوم کے بارے میں۔ شروط صحت صوم میں سے پہلی کل پڑی تھی کہ شروط صحت صوم میں پہلی شرط کیا ہے؟ تمیز ہے۔ تمیز ہے یعنی وہ اس کے اندر وہ بچہ جو ہے اتنی صلاحیت ہو کہ واجبات کو مستحبات سے جدا کر سکے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر وہ صلاحیت وغیرہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ پہلی شرط تھی صحت کی تمیز، اور دوسری شرط جو ہے وہ آج ہم پڑھ رہے ہیں شرائط صحت صوم کی، البتہ کہ عورت جو ہے حیض اور نفاس سے خالی ہو۔ حیض اور نفاس سے نہ صرف خالی ہو بلکہ حیض و نفاس سے خالی ہونے کے بعد غسل کرنا بھی ضروری ہے۔ جی ربط مل گیا گا جان؟ شرائط صحت صوم سے اس کا ٹچ ہے۔ شرائط صحت صوم میں پہلی تمیز اور دوسری معتبر ہے صحت صوم کے لیے کہ عورت حیض اور نفاس سے وہ کیا ہو؟ خالی ہو۔ حیض اور نفاس سے وہ عورت کیا ہو آگا جان؟ خالی ہو۔ نہ صرف خالی ہو بلکہ اس کا غسل کرنا بھی کیا آگا جان؟ ضروری ہے۔ مصنف کی نظر میں غسل کرنا اس کا ضروری ہے۔ حیض و نفاس کے بعد غسل بھی وہ عورت کرے۔ اور اس کے بعد اگلی شرط یہ ہے شرائط صحت صوم میں سے کہ کفر سے بھی وہ کیا ہو؟ خالی ہو۔ اگر کافر ہے تو اس پر نماز روزہ واجب ہے لیکن صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہو گئی بات؟ تو یہ جناب علی شرائط میں سے، شرائط صحت صوم میں سے ہیں یہ باتیں۔ اس کے بعد ایک مطلب ہمارا اور ہوگا مسئلہ کہ مستحاضہ عورت کا روزہ رکھنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، یہ ایک الگ مسئلہ بنانا ہے ہم نے کہ مستحاضہ عورت کا روزہ رکھنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ تو شہید نے فرمایا ہے کہ مستحاضہ عورت کا روزہ رکھنا صحیح ہے جب وہ غسل کو انجام دے دے، جب وہ غسل کو واجب غسل کو انجام دے دے۔ تو پھر یہاں جناب سوال ہوا ہے کہ غسل سے کیا مراد ہے؟ غسل کیونکہ خالی کا نا غسل کو انجام دے۔ مستحاضہ عورت کا روزہ رکھنا صحیح ہے جب وہ غسل کو انجام دے دے، تو غسل سے مراد کیا ہے؟ شہید ثانی نے فرمایا ہے مراد غسل سے غسل نہاری ہے، دن والا غسل مراد ہے۔ صبح کا کرے گی، ظہر عصر کا کرے گی، اور بعض نے کہا ہے کہ صبح کا بھی غسل کر لینا تو اس روزے کی، اسی روزے کی جو روزہ رکھا ہوا ہے اس کی صحت کے لیے کافی ہے۔ تھوڑا اختلاف ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اچھا، جب شہید کی نظر میں، ثانی کی نظر میں غسل نہاری کو اگر وہ عورت کرتی ہے صبح کا، ظہر عصر کا، ٹھیک ہے، تو اس کا روزہ کیا ہے جان؟ اسی دن کا جو روزہ رکھا ہے اس کا روزہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ایک اور یمکن ہے جان، اس میں یہ کہا ہے ممکن ہے۔ اس غسل سے مراد جو شہید اول نے فرمایا ہے یسع من المستحاضہ اذا فعلت الواجب من الغسل، اس غسل سے مراد ممکن ہے کیا ہو آگا جان؟ یہ غسل شرط ہو مطلقاً، یعنی یہ غسل نہاری ہو یا یہ غسل رات والا غسل ہو یا دن والے غسل ہوں، یہ شرط ہیں مطلقاً۔ آج کے روزے کے لیے بھی شرط ہیں اور جو اگلا دن ہے، اگلا روزہ جو رکھنا ہے اس کے لیے بھی شرط ہیں۔
ये एहतिमाल है। तवज्जो फरमाई। मुमकिन है इस गुस्ल से मुराद क्या हो, मुतलक हो, मुतलकान। क्या मतलब, मुतलक गुस्ल, दिन वाले गुस्लूं, रात वाले गुस्लूं, यानी सुबह का करे, जोर असर का करे, मगरिब इशा का करे, ये गुस्ल शर्त है मुतलकान, यानी ये गुस्ल आज के रोजे के लिए भी शर्त है और वो रोजा जो कल रखना है उसके लिए भी शर्त है, क्योंकि नस जो है ना वो मुतलक आई है, नस मुतलक है। शहीद सानी फरमाते हैं नहीं, अव्वल अजवद है, पहला कौल अजवद है। पहला कौन सा, पहला कौन सा आगे जान अजवद है कि गुस्ल रोजाना शर्त है, गुस्ल जो रोजाना का है, सुबह का, जोर असर का, वो भी उसी दिन के लिए, उसी दिन वाले रोजे के लिए। ये जो गुस्ल रोजाना वाले हैं ना वो क्या है जान, वो अजवद है और वो बेहतर है पहले वाला कौल के गुस्ल नहारी हो जाए। क्यों, क्योंकि जो गुस्ल इशाएन है वो वाजिब ही नहीं है, मगर जब रोज़ा गुजर जाता है, रोज़ा ख़त्म हो जाता है, उसका टाइम गुजरने के बाद गुस्ल इशाएन वाजिब हो रहा है। ठीक है, तो बस ये बाद वाला गुस्ल किस तरह पहले वाले रोज़े की सेहत में हम कहें शर्त है, कैसे है ये गुस्ल इशाएन, तो वो जो रोज़ा रखा हुआ है उसके गुजरने के बाद है, किस तरह ये बाद वाला गुस्ल पहले वाले रोजे की सेहत में मतलब है हम कहें कि शर्त है। ठीक है, लिहाजा ये ठीक नहीं है, बल्कि वही उस दिन के रोजे के लिए गुस्ल नहारी अगर वो कर लेती है तो वो काफ़ी हैं। ठीक है, इसके बाद अगर जाने एक मतलब और है कि अगर वो औरत तंबली करती है, सुस्ती करती है और वो गुस्ल जो उसने मगरिब और इशा का करना था नहीं करती, तो फिर सुबह के टाइम जो है ना दोनों की नियत कर ले, मगरिब इशा वाला भी और सुबह का जो गुस्ल करना है, तो वहाँ दो गुस्ल इज्तिमा हो जाएंगे। अगर वहाँ करना चाहे तो तदाखुल हो जाएगा। ठीक है, अपने भाइयों की खिदमत में जो बात मैंने पहुँचाई, भला मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा है, अर्ज किया है अपने भाइयों को कि भाई शरायते सेहत सोम क्या हैं। पहली तमीज़ थी जो कल गुजरी, ठीक, और दूसरी ये है कि वो औरत हैज से खाली हो, निफास से खाली हो और उसके बाद गुस्ल भी करे, गुस्ल भी करे। ठीक है, सेहत के लिए गुस्ल ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद ये किया है कि अगर कोई काफिर है तो कुफ्र से भी वो क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए। वाजिब है लेकिन सही नहीं है। ठीक है, ये उस पिछले से जो है ना शरायत सेहत सोम से कुछ शर्तें बची हुई थी वो बयान की हैं। और फिर एक मसला और छेड़ा है, वो ये कि मुस्तहाज़ा औरत के रोज़े के बारे में क्या हुक्म है जी। तो अर्ज़ किया है कि शहीद ने फरमाया है कि मुस्तहाज़ा औरत का रोज़ा सही है अगर वो गुस्ल नहारी को अंजाम दे दे। गुस्ल नहारी सुबह वाला ज़ोहर असर वाला अंजाम दे देना तो वो जो रोज़ा उसने रखा हुआ है वो ठीक है। और एक और एहतमाल दिया गया है कि इस गुस्ल में जो शहीद ने फरमाया गुस्ल दे, इस गुस्ल से मुराद ना मुतलक गुस्ल हैं, सुबह ज़ोहर असर मगरिब इशा वाला गुस्ल, सारे गुस्ल मुराद हैं इस गुस्ल से, और वो भी शर्त हैं ये मुतलक गुस्ल, यानी आज के रोज़े के लिए भी शर्त हैं और अगले वाले रोज़े के लिए भी ये शर्त हैं, क्योंकि नस मुतलक है। लेकिन शहीद सानी ने पहले को क्या किया जान, तरजीह दी है कि गुस्ल नहारी शर्त है, क्योंकि गुस्ल इशा आयन जो है, गुस्ल इशा आयन जो है वो वाजिब नहीं है, गुस्ल इशा आयन वाजिब ही नहीं है मगर उस दिन के गुजरने के बाद है। गुस्ल इशा आयन वाजिब नहीं है मगर पिछला जो दिन गुजरा है उसके बाद आ रहा है, तो इसको कहते हैं शर्त मुतअखिर। ये उसूल में बहस है कि शर्त मुतअखिर है हमारे पास है या नहीं, कि मशरूत पहले हो बाद वाली शर्त आकर उसको ठीक करे। ये एक इल्म उसूल में बहस चलती है। खुलासा यहाँ शहीद इसको पसंद नहीं कर रहे हैं कि रोज़ा पहले और बाद में शर्त आकर उसको ठीक करे। ठीक है, और आखिर में ये बयान किया है कि अगर वो औरत सुस्ती करती है, मगरिब इशा का गुस्ल नहीं करती, सुबह के साथ कर लेती है, तो फिर भी काम चल जाएगा। तवज्जो फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवक्कलतु अलल्लाह हस्बी अल्लाह व युतबरु अल-खुलुव्वु मिनहुमा। ये कहाँ से मरबूत करोगे, वो व युतबरु फी सिहति अत-तमीज़ु
रब्त ज़रूर दो। वयुतबरु फी सेहत सौम में अत्तमीज़ और वयुतबरुल खुलू मिनहुमा मिनल हैज़ वन निफास, मोतबर है खाली होना मिनहुमा मिनल हैज़ वन निफास, हैज़ और निफास से खाली होना मोतबर है। वकज़ा युतबरु फीहिमा अल गुस्ल बादहु इंदल मुसन्निफ, और इसी तरह मोतबर है फीहिमा हैज़ और निफास में गुस्ल मोतबर है बादहु बादल खुलू, खाली होने के बाद गुस्ल किया है जान मोतबर है इंदल मुसन्निफ, मुसन्निफ की नज़र में गुस्ल मोतबर है। फ़कान अलैहि यज़कुरहु, फ़कान अलैहि तो इस मुसन्निफ पर ज़रूरी था अन यज़कुरहु कि वो गुस्ल को क्या करे, ज़िक्र करे। इज़िल खुलू मिनहुमा ला यक्तज़ी है, क्योंकि खाली होना मिनहुमा हैज़ और नफास से खाली होना ला यक्तज़ी है, ये गुस्ल का तकाजा नहीं करता है। ठीक है ना, मुसन्निफ को चाहिए था कि वो जिक्र भी करे कि गुस्ल भी करे, क्योंकि इज़िल खुलू मिनहुमा ला यक्तज़ी है, क्योंकि खाली होना मिनहुमा हैज़ और नफास से खाली होना ला यक्तज़ी है, ये गुस्ल का तकाजा नहीं करता है। कमा लम यक्तज़ी फी शर्तिल वुजूब, जैसा कि गुस्ल का तकाजा नहीं करता है शर्त वुजूब में। इज़िल मुरादो बिहिमा फी नफ्सुद्दम लिवुजूबिही अलल मुनक़ते व इन लम तसिल। इज़िल मुरादो बिहिमा, चूँकि मुराद जो है बिहिमा हैज़ और निफास से मुराद फी है नफ्सुद्दम, वुजूब में खुद खून है। हैज़ और निफास से मुराद वुजूब में खुद खून है। ले वुजूब ही अलल मुनक़ते, रोज़ा वाजिब है मुनक़ते पर, जिसका खून रुक जाए रोज़े का वुजूब आ जाता है। व इन लम तसिल, अगरचे वो गुस्ल ना भी करे। वयुतबर वगा वल खुलू मिनहुमा मिनल हैज़ वन निफास, वयुतबर अल खुलू मिनल कुफ्र, कुफ्र से भी वो क्या हो, खाली हो। फ़इन्नल काफिर यजिबु अलैहि सौम का गैरिही, काफिर जो है यजिबु अलैहि सौम, काफिर पर रोज़ा वाजिब है का गैरिही गैरे सौम की तरह। वलकिन ला यसिहु मिनहु माअहु, ला यसिहु मिनहु, लेकिन काफिर से माअहु कुफ्र की सूरत में सही नहीं है। इसके बाद जो अगला मसला बताया मुस्तहादा औरत के रोज़े के बारे में। वयसिहु मिनल मुस्तहादति इज़ा फ़अलत अल वाजिबा मिनल गुस्ल नहारी, मुस्तहादा औरत का रोज़ा सही है जब वो वाजिब गुस्ल नहारी को अंजाम दे। वइन कान वाहिदन बिनिस्बत इला सौमिल हाजिर, अगरचे आगा जान वो गुस्ल नहारी जो है वो एक भी हो बिनिस्बत इला सौमिल हाजिर, सौम हाजिर की निस्बत यानी उसी वाले रोज़े की निस्बत, अगरचे वो एक गुस्ल भी करे, क्योंकि ये आपको बताया ना इख्तिलाफ है। बाज़ कहते हैं कि गुस्ल सुबह भी अगर कर लेती है ना, वो गुस्ल नहारी में से जो गुस्ल सुबह है तो उस रोज़े को वो ठीक कर देता है, इख्तिलाफ है ना, इसलिए कह रहे हैं। वइन कान वाहिदन बिनिस्बत इला सौमिल हाजिर, अगरचे वो एक गुस्ल भी कर ले उसी हाजिर वाले रोज़े की के लिए। और मुतलकुल गुस्ल बिनिस्बत इलल मुकबिल, या मुतलक गुस्ल बिनिस्बत इलल मुकबिल, आइंदा वाले रोज़े के लिए मुतलक गुस्ल मुराद है, यानी क्या सुबह का, ज़ोहर असर का, मगरिब इशा का। मुतलक गुस्ल बिनिस्बत इलल मुकबिल, आने वाले की रोज़े की निस्बत मुतलक गुस्ल मुराद है। व युमकिन मन युरीदा कौनो मुतलकन शर्तन फीहि मुतलकन, मुमकिन है इरादा किया जाए कौन हो मुतलकन, के गुस्ल का इरादा किया जाए मुतलकन, नहारी हो या जनाब गुस्ल क्या होगा जान रात का हो, शर्तन फीहि, शर्त है मुतलक गुस्ल शर्तन फीहि, शर्तन फीहि यानी इस सौम में शर्त है मुतलकन, आज का रोज़ा हो या कल का रोज़ा हो, आज के लिए भी ये शर्त है, कल वाले के लिए भी शर्त है। इस गुस्ल से मुराद मुमकिन है मुतलक गुस्ल लें सुबह ज़ोहर असर मगरिब इशा का, और वो भी शर्त हो, आज के रोज़े की भी शर्त हो और कल के रोज़े की भी शर्त हो, मुमकिन है। व युमकिनु अन युरीदा कौनुहु मुतलकन शर्तन फीहि मुतलकन, मुमकिन है इरादा करें कौन हो इस गुस्ल से मुतलकन, नहारी हो रात का हो, कि ये शर्त है फी है रोज़े में मुतलकन, आज के रोज़े के लिए भी और कल के रोज़े के लिए भी शर्त है। नजरन इला इतलाक नस से, नजर करते हुए इतलाक नस की तरफ। वल अव्वलो अजवद, पहला कौल अजवद है, यानी शर्त होना
غسل روزانہ غسل نہاری اسی روزے کی نسبت اول سے مراد یعنی روزانہ والا غسل نہاری شرط ہے، غسل نہاری شرط ہے اسی روزے کی نسبت، والاول اجود پہلا اجود ہے، کیوں؟ لأن غسل العشاءین لا یجب الا بعد انقضاء اليوم، کیونکہ عشاءین کا غسل واجب نہیں ہے مگر بعد انقضاء اليوم، مگر دن کو گزرنے کے بعد، انقضاء یوم کے بعد، فلا یکون شرطا فی صحتہ، پس یہ بعد والا غسل شرط، فلا یکون شرطا فی صحتہ، صحت صوم میں شرط نہیں ہے، فلا یکون شرطا یہ غسل عشاءین شرط نہیں ہے فی صحت صوم میں، کیونکہ یہ تو بعد میں ہے، نام ہوا شرط فی الیوم الاتی، جی ہاں یہ غسل عشاءین جو ہے یہ شرط ہے فی الیوم الاتی، آنے والے دن کے لیے شرط ہے۔ اب یہاں اگر جان بات یہ ہے کہ وہ عورت مطلب سستی کر جائے، یہ مغرب عشاء والا غسل کرتی نہیں ہے، تو پھر یہ صبح کے ٹائم کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، کہتے ہیں کر سکتی ہے، تداخل ہو جائے گا۔ وَيَدْخُلُ فِي غُسْلِ الصُّبْحِ لَوْ اجْتَمَعَا، يَدْخُلُ تداخل ہو جائے گا غسل صبح میں، لو اجتماعا اگر دونوں غسل جمع ہو جائیں، وَيَدْخُلُ فِي غُسْلِ الصُّبْحِ لَوْ اجْتَمَعَا، يَدْخُلُ تداخل ہو جائے گا غسل صبح میں، لو اجتماعا اگر دو غسل کیا ہو جائیں، جمع ہو جائیں۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان، موفق معید رہو، سلامت رہو میرے بچے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔